Good morning to one and all present here. I hope you all are doing well. Today we'll be doing a very interesting chapter, that is common noun and proper noun. देखिए, before starting with this chapter, I would like to explain you what is noun. Noun क्या होता है? Noun is the name of a person, animal, place, animal or anything, right? Noun basically क्या होती है? संज्ञा. संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, right? So basically this common noun and proper noun, they are the kinds of noun. और noun को हम लोग naming words भी बोलते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स. हम किसको नेम कर रहे हैं? वी आर नेमिंग दी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, animal and thing, right? So we are just naming. That is why they are known as naming words. Where we'll be studying about two types of noun, that is common noun and proper noun. See, what is common noun? कॉमन नाउन इज दैट नाउन जो कि सबके साथ है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो बिल्कुल कॉमन है, जो सबके साथ चलेगा. whereas दिस प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो बिल्कुल पर्टिकुलर है, लाइक महात्मा गांधी, दिल्ली, राइट? कोई भी किसी भी स्टेट का नाम, कोई भी किसी माउंटेन एवरेस्ट का नाम, या फिर आप कह सकते हैं किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम, हम लोग के पेरेंट्स का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन है. क्योंकि if we won't be having a particular names of ourselves or of our parents, then it will be very difficult for us to recognize कि आपके पेरेंट का नाम क्या है या फिर मेरे पेरेंट का नाम क्या है. So let's just begin with this chapter by giving some few examples. You all will be damn clear. But before starting with this chapter, again I'm focusing on my words that please and please go through the previous chapters, go through the previous concepts, so that it will be very easy for you to learn all these concepts, because they are very easy. But the only way to command on these topics is that you have to revise the previous one. So let's just begin. So it's common noun and proper noun words. हम proper noun और common noun naming words पढ़ेंगे. यहाँ पे ये noun की जगह naming words लिखा हुआ है, इसकी जगह we can place noun. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसे noun भी बोलेंगे. So let's just begin. First is common naming words. Common naming word is the name of any common person, place, animal and thing. See, we can see this is the definition of noun only, that noun is the name of a person, place, animal and thing. For example, it's a boy, girl, school, lion, bag, etc. Boy, girl, school. School में ऐसा नहीं है, school कभी भी मेल फीमेल नहीं हो सकता. School is normal, right? So, and what are proper naming words? Proper naming word is a special name which is given to a particular person, place, animal and thing. I have already explained you that for proper noun, or you can say proper naming words, ये basically क्या होते हैं? कोई particular नाम होता है. जैसे कि टीना, रेड फोर्ट एक ही है पूरे वर्ल्ड में, राइट? दिल्ली में सिचुएटेड है, रेड फोर्ट एक ही है. टीना, अब टीना किसी एक ही लड़की का नाम हो सकता है, बट टीना के आगे आप कुछ कुछ लगा सकते हैं. समटाइम्स इट्स टीना छाबड़ा, टीना डाबी, दैट IAS गर्ल, राइट? So let's just begin. You can read these sentences. She likes eating potatoes. उसको potatoes खाना बहुत ज्यादा पसंद है. देखिए ये eating क्या है? ये verb है, right? Action है, ये action doing words. I bought a book yesterday. मैं कल एक बुक लेकर आया था. एक ही बुक के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक indefinite article लगा रखा है. I write with a pencil. मैं पेंसिल की मदद से लिखता हूँ. Again, this is a preposition. बिना preposition के sentence को frame करना बहुत मुश्किल है. Please keep this in your mind, right? A cow is a useful animal. Cow एक बहुत ही ज्यादा useful animal है. तो वही है पोटैटोज, बुक, पेंसिल, काउ, एनिमल्स, ऑल दीज वर्ड्स. अब देखिए दीज यूज हुआ हुआ है और बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लगा रहे हैं? आर लगा रहे हैं. और ये क्या है? दे आर दी कॉमन नेमिंग वर्ड्स, और यू कैन से कॉमन नाउन्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस कॉमन नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन भी बोलते हैं, राइट? नाउ मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नेमिंग वर्ड्स. रिलेशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर. रिलेशन, देखिए कॉमन नाउन है ये, और एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रिलेशन एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, जैसे कि मदर. अब देखिए मदर इज वेरी कॉमन, बट इफ आई स्पेसिफिकली से दैट द मदर ऑफ टीना, तो फिर टीना की मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं हम, राइट? सन, सिस्टर, आंट, सबकी आंट होती हैं, सबकी सिस्टर्स होती हैं, सबके सन्स होते हैं, सबकी डॉटर्स होती हैं, सबकी डॉटर इन लॉ होती है, बिकॉज इट्स अ कॉमन नाउन, राइट? Places.
स्कूल, पार्क, सिटी, आप किसी भी सिटी में जा रहे हैं, अब आप महाराष्ट्र में जाए या फिर महाराष्ट्र या फिर पूना, यू कैन से दिल्ली, हैदराबाद, कुछ भी स्टेट का नाम ले, सिटी का नाम ले, वो सब ये कॉमन है भाई, सारी सिटीज है, राइट। एनिमल्स, काउ, हॉर्स, मस्किटो, कुछ भी आप एनिमल्स के कॉमन नेम दे रखे हैं। जो चीजें हम यूज करते हैं, थिंग्स दैट वी यूज इज बैग, पेन, पेंसिल, और यू कैन से व्हाइटनर, वट एवर थिंग्स दैट यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ। थिंग्स वी प्ले विद, बॉल, टॉय, रैकेट, और हम बैट्स के साथ खेलते हैं, बैट बॉल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू कैन से कार, बस, ट्रेन, और भी आप कह सकते हैं ऑटो रिक्शा, बाईसाइकिल, राइट। मूविंग फर्दर, you have to read these sentences that Dipali is my best friend, दीपाली मेरी बेस्ट फ्रेंड है। I live in Delhi, देखिए ये preposition है, ये helping verb है ये, राइट। माई बर्थडे इज इन जून, अगेन दिस इज अ preposition, मेरा बर्थडे जून में है, और ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, राइट। ही इज टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल, इस स्कूल में वो क्या पढ़ा रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है, ये अगेन ये हेल्पिंग वर्ब है। और शी इज टीचिंग, और टीचिंग क्या होती है, वर्ब होती है, राइट। This Dipali, Delhi, June, English, they are these words, they are proper naming words, or you can say proper noun। ये क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि दीपाली इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब आई हैव मेंशन्ड कि दीपाली मेरी फ्रेंड है, एक तो मैंने कह दिया कि शी इज माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है, विच इज वेरी कॉमन कॉमन। नाउ आई एम सेइंग कि दीपाली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दीपाली मेरी फ्रेंड तो है, राइट। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट इसके बीच में ये जो लग चुका है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे अपने फ्रेंड की क्वालिटी बता दी है कि ये मेरा जो फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दिस इज एन एडजेक्टिव। इसने नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को ऊपर उठा दिया, ये प्रॉपर नाउन है, ये नाउन है, और इन दोनों की क्वालिटी को ऊपर कौन उठा देता है, एडजेक्टिव। विशेषण वही होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और यहाँ पे सर्वनाम की जगह, यहाँ पे शी की जगह सीधा दीपाली लिखा हुआ है, राइट। इसी तरीके से आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने दिल्ली बता दिया, अब दिल्ली एक ही है, राइट। इट्स अ यूनियन टेरिटरी, नॉट अ स्टेट। माई बर्थडे इज इन जून, मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि मेरा बर्थडे जून में ही आता है। ही इज टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल, और वो क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ाता है इस स्कूल में, पढ़ाता तो है, दिस इज कॉमन, बट वो क्या पढ़ा रहा है, वो स्पेसिफिकली इंग्लिश पढ़ा रहा है, राइट। दैट इज वाई ये इंग्लिश कैसा है, प्रॉपर नाउन। Now some more examples of proper naming words is days of the week, Sunday, Monday, Tuesday। अब आप Sunday, Monday, Tuesday एक ही हैं, बार बार इन्हें किसी को ये नहीं है कि आप Sunday की जगह कुछ और यूज करेंगे, no, it's fixed and it's proper noun, it's particular। Months of the year, May, June, July, January, February, whatever, आगे जितने भी 12 हैं। Countries and cities, India, England, Mumbai, again this is situated in Maharashtra, England, again UK, Britain की बात हो रही है। Monuments, Taj Mahal, Red Fort, the Great Wall of China, right, and this is the greatest wall of China। Physical features like Mountain Everest, the Himalayas, the Indian Ocean, आप देख सकते हैं सबके आगे definite articles लगे हुए हैं, क्योंकि ये क्या है, particular है। Rivers, गंगा, यमुना, सतलज, right, और झेलम, this river is very famous and it is situated in Kashmir, right? So these are proper nouns। So basically proper nouns क्या होते हैं, किसी particular चीजों के नाम लेना। Common nouns जो बहुत ही ज्यादा common है, जो सबके साथ चल रहा है। So I hope you all understand, you all understood this concept, what is common noun, what is proper noun, what is a noun। But before reading this, please go through the previous chapter, and one more homework for you, that you have to read your textbook, whatever textbook you are reading, please make sure that from 2 pages of reading you will be finding out what is the common noun and what's the proper noun. You have to identify. First you will write down 10 sentences from that page, from both the pages, 10 each, and then you will be identifying that what are the common naming words and what are proper naming words. But before that, please go through the previous concepts so that it will be very easy for you to further understand the further topics. And stay blessed, keep smiling. Thank you.